So now let us continue our second unit. Okay, eigenvalues and eigenvectors. Okay, yeah. So in last lecture I have just defined the eigenvalues and eigenvectors. So let me explain one more time. Okay, so if A is any given matrix, okay, so for this topic we particularly focus on only square matrix. So if A is a square matrix, okay, lambda is called, lambda is a real number, okay, lambda is a real number. So this lambda is called the eigenvalue of this matrix A, okay, corresponding to eigenvector x if it satisfies this mathematical condition, okay, where this x is called as eigenvector. And what is the condition on x? What is the condition on x? Non-zero. This वेक्टर इज ऑलवेज नॉन जीरो. ठीक है, तो जब आप आगे कैलकुलेशन करोगे ना x के लिए, क्योंकि आप लैम्बडा आप और आपका क्लेम क्या है इस पूरे टॉपिक में? व्हाट इज आवर क्लेम? ओके, वी विल फाइंड लैम्बडाज, ओके, करस्पॉन्डिंग टू दैट मैट्रिक्स एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच लैम्बडा वी विल फाइंड द आइगन वेक्टर्स. आप बेसिकली लैम्बडा एंड x कैलकुलेट करने वाले हो. ठीक है, सो तो अगर कैलकुलेशन में कहीं जाके अगर आपके पास x की वैल्यू 0 आती है, इट मीन्स ओके यू हैव परफॉर्म द रॉन्ग कैलकुलेशन देयर. ठीक है, तो कहीं पे ना कहीं पे आपने मिस्टेक की होगी. सो रिमेंबर दैट x इज ऑलवेज नॉन जीरो. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन. ओके, so let me continue with this discussion again. एक और बार ये पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. But I think before taking this remark, let me just talk about the homogeneous system first. Okay, yeah. So homogeneous linear system. Okay, so what is the definition of homogeneous linear system? Ax is equal to 0, or you can also consider it as Ax is equal to z. Z is the zero matrix. So if this right side matrix, or you may remember like this, that right side matrix is 0. Clear? This system is called as homogeneous system. Okay, so the first result is what? We know that every homogeneous system is always consistent or inconsistent? Consistent. Okay, so it is always consistent. तो इसमें no solution का पार्ट आता ही नहीं. Okay, rank of augmented matrix, rank of A comma 0 is always equal to rank of A. Okay, in case of homogeneous system. So if it is consistent, then there are only two possibilities. Okay, so one is unique solution. One is unique solution and second is infinite solution. ठीक है, ओके. हाँ, नाउ यूनिक सोल्यूशन क्या होता है होमोजेनियस सिस्टम में? यूनिक सोल्यूशन मींस देयर एग्जिस्ट ओनली वन सॉल्यूशन. बट आपको ऑलरेडी पता है कि हर एक होमोजेनियस सिस्टम के लिए x इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन होता है. x इक्वल टू 0 मतलब x1 इज 0, x2 इज 0 एंड x3 इज 0. If all variables are 0, then we call it as trivial solution. So trivial solution is always a solution of your homogeneous system. Correct ना? इस स्टेटमेंट में किसी को कुछ डाउट्स है? आप कोई भी होमोजेनियस सिस्टम कंसिडर करो जिसमें राइट साइड में जीरो है. अगर आप वो सारे वेरिएबल जीरो लेते हो, या एवरी होमोजेनियस सिस्टम सैटिस्फाइज दिस. When you take x equal to 0, x2 equal to 0, x3 equal to 0, it always satisfies that given system. Therefore, every homogeneous system has a trivial solution. ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था. और सिंपली दैट यूनिक सोल्यूशन इज नथिंग बट अ ट्रिवियल सोल्यूशन इन केस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम. ठीक है, ये तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाता है. बट व्हाट इज द मैथमेटिकल कंडीशन टू चेक वेदर द सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन और नॉट? आपको मैंने क्या रिजल्ट दिया था मैथमेटिकली? हाँ, मैथमेटिकली रिजल्ट क्या था? मतलब नॉन होमोजेनियस सिस्टम के केस में रिजल्ट क्या था? क्या चाहिए आपको?
रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या चाहिए, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये आपकी मैथमेटिकल कंडीशन है। और यहां पे जो मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं, दिस इज अ मैट्रिक्स इन एवरी एग्जांपल, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n। ओके, ये याद ही रखो। ओके, ठीक है। हाँ, so if rank is equal to n, then it always gives you unique solution, and if infinite solution means rank is less than n। okay, that is rank of augmented matrix is equal to rank of A is less than n। done, ठीक है। हाँ, तो ये अभी तक आपको पता है। ओके, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। नाउ लेट मी, एज इन दिस केस our focus is on only a square matrix, it means I can introduce one more method. This is one way. Now let me introduce one more way to find this, just to check whether system has unique solution or infinite solution। why? क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स आने वाला है वो स्क्वायर ही आने वाला है। ठीक है, सो वो वे क्या है, you can use determinant, you can directly take a determinant of this matrix to check whether the given system has unique solution or infinite solution। ये सबसे ट्रिवियल वे होता है अगर आपको एमसीक्यूज में जाना है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट दे रहा हूं। अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो क्या होगा, एंड अगर आपका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आता है तो क्या होगा। ठीक है, ओके। कुछ स्टूडेंट को शायद ये नहीं समझ में आ रहा होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ 3x3 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, लेट मी टेक एनी रैंडम मैट्रिक्स, ऐसे जल्दी विजुअलाइज होगा। ओके, तो मुझे ये बोलो, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, व्हाट इज रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। अभी ये जीरो आता है यहाँ पे। हाँ, ये स्टेटमेंट सबको समझ में आ रहा है। अगर किसी को भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे बोलो, आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपकी रैंक 3 आती है। इसका रीजन ये था, अगर आप एक्चुअल डेफिनेशन चेक करते हो रैंक की, तो आप क्या करते हो, हाईएस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स से आप स्टार्ट करते हो। तो यहां पे 3x3 इज द हाईएस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स। ओके, तो अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो आता है तो वही आपकी रैंक हो जाएगी। अगर ये वैल्यू जीरो आती है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, तो आपकी रैंक क्या होगी, व्हाट हैपन इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, देन रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। आप कैलकुलेट करोगे, बट हाँ, सो दैट वैल्यू मस्ट बी लेस देन 3। ठीक है, तो अगर 2x2 का कोई डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो आता है, 2x2 का डिटरमिनेंट अगर आपका कोई नॉन जीरो आता है, इन दैट केस योर रैंक बिकम 2। ठीक है, तो इफ आई वांट टू से R एज द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो कंडीशन क्या थी, डेफिनेशन क्या थी, उस ऑर्डर का, अगर मुझे R को रैंक बोलना है तो उस ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट आपको नॉन जीरो चाहिए, एंड उसके आगे मतलब R+1 ऑर्डर के सारे डिटरमिनेंट आपको जीरो चाहिए। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैंक। ओके, एंड अगर इस वे से आपको नहीं समझ में आ रहा है, सो देयर इज नो अदर वे, यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट। देन शायद मे बी जिन्होंने अटेंड नहीं किया था ऑफलाइन सेशन, दे मे फाइंड दिस लिटिल डिफिकल्ट, बट ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट क्या है, अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो जो मैट्रिक्स की रैंक आती है वो क्या आती है, इट्स ऑर्डर, दैट इज नथिंग बट n। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एमसीक्यूज में आने वाला है। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो उसकी जो रैंक आती है, दैट रैंक इज ऑलवेज इक्वल टू n। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। एक मिनट, कैन यू टेल मी व्हाट इज रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। यहां पे 4 है, एनीवन, व्हाट इज रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। 3. Why? 3. The determinant is not equal to 0. What is the determinant of this matrix? 8. So, in case of upper triangular matrix or in case of lower triangular matrix, your determinant is nothing but diagonal elements. So your determinant is nothing but product of the diagonal elements. तो 4 into 2 into 1 8, तो आपका यहाँ पे डिटरमिनेंट आता है 8, एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3।
ये रिजल्ट्स आपको एमसीक्यूज में चाहिए, ओके तो इसलिए याद रखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है, रैंक इज नथिंग बट ऑर्डर विच इज इक्वल टू n, डन, ठीक है, ओके। and in case of homogeneous system you will get a unique solution, ठीक है। अब ये इसके अंडर ही है, so I will not write that part again, समझ में आ जाएगा ना ऐसे। दिस इज वन मोर वे, अगर ये होता है तो भी आपको यूनिक सोल्यूशन ही मिलता है, ओके। या लेट मी राइट इट एंड यू विल गेट यूनिक सोल्यूशन। एंड इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन आपको क्लियरली पता है कि रैंक क्या आने वाली है, रैंक ऑफ A0 इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ये लेस देन n ही आने वाली, n तो कभी नहीं आएगी, n मतलब उसकी ऑर्डर थी, अगर उस ऑर्डर का डिटरमिनेंट 0 आता है तो वो कभी नहीं आती रैंक। आपको ये पता होना चाहिए जो भी नंबर रैंक आते हैं ना, उस ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट कंपलसरी नॉन जीरो चाहिए, ओके। सो n ऑर्डर का एक ही डिटरमिनेंट था, वो 0 आ रहा है, therefore n cannot be a rank, therefore n cannot be a rank of that matrix, ठीक है। सो in this case you will get an infinite solution, ठीक है। बट ये इन जनरल रिजल्ट है, बट अगर आप होमोजेनियस सिस्टम में हो जहां पे राइट साइड में सारे जीरोज है, तो होमोजेनियस सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब सारे वेरिएबल्स की वैल्यू 0। Sir, can you say that the trivial solution is a zero? Sir, for Yes. every homogeneous system, we get trivial solutions, sir. Provided determinant of A is not equal to 0 और under unique solution, सब में नहीं होता ना, इन्फिनिट आता तो 0 के साथ सारे अदर सॉल्यूशन भी ऐड हो जाएंगे ना। Yes, sir. I mean, in case of unique systems. Yes. Okay, let me give you one example. ठीक Unique है, solution. मैं आपको एक एग्जांपल ही देता हूँ, चलो। प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, 7x1 माइनस 5x2 प्लस 10x3 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, कौन सी सिस्टम है, होमोजेनियस या नॉन होमोजेनियस? होमोजेनियस, क्योंकि राइट साइड में सारे 0 आ रहे हैं, तो ये होमोजेनियस सिस्टम है। हाँ, अभी अगर मैं ये बोलता हूं इस सिस्टम, ओके उससे पहले चलो, कैन यू टेल मी वन सॉल्यूशन ऑफ दिस? ओके, अभी दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि अगर आप x1 0 लेते हो, x2 0 लेते हो, x3 0 लेते हो, दिस satisfies all three equation। तो सारे क्वेश्चंस में होमोजेनियस के केस में एक सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी रहता है, वो क्या होता है, जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर मेरे पास रिजल्ट ये आ रहा है कि इस सिस्टम को यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है, बट आपके पास ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, जीरो ही होगा ना। यूनिक है मतलब एक ही चाहिए, बट ऑलरेडी आपको एक पता है जीरो सॉल्यूशन, तो वो कंपलसरी क्या होगा, जीरो सॉल्यूशन होगा। इज इट क्लियर नाउ? ओके, ठीक है। सो एंड अगेन, जिनको थोड़ा बहुत ये नहीं समझ में आ रहा है ना, इट्स माय सजेशन यू रिमेंबर दिस रिजल्ट राइट नाउ, लेटर ऑन यू विल अंडरस्टैंड, ओके। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, जो रिजल्ट्स में दे रहा हूं आप नोट डाउन करते जाओ नोटबुक में। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, रैंक इज इक्वल टू ऑर्डर, ओके। हाँ, रैंक इज इक्वल टू ऑर्डर, और इसके बाद ये बाकी रिजल्ट आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपकी रैंक n आती है, यू विल गेट यूनिक सॉल्यूशन। होमोजेनियस में अगर आप हो तो यूनिक सॉल्यूशन नथिंग बट जीरो सॉल्यूशन, ओके। एंड अदर केस में यू विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अभी ये आपको कैलकुलेट करना होगा, ओके। नाउ आई कैन टॉक अबाउट दिस आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ठीक है। अभी वो कंटिन्यू करता हूं। सो लेट मी स्टार्ट विद द रिमार्क्स, ठीक है। फर्स्ट रिमार्क, सो नाउ मुझे अभी यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना है, हाउ टू क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। एट देन आपका क्लेम क्या है इस पूरे यूनिट में, हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। उसमें से एक क्लेम अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। ये मेरा क्वेश्चन है, सो लेट मी आंसर दिस नाउ, ठीक है। ओके, सो इफ आई हैव अ मैट्रिक्स ए, okay, of order n by n, okay, I have eigen value lambda,
I have eigenvector x, then it must satisfies this. Correct ना? Yes. Yes, sir. Okay, we have this result. ठीक है? Okay, where जरूरी नहीं है लिखने की, बट ठीक है, where lambda is the eigenvalue, lambda is the eigenvalue corresponding to eigenvector x. ठीक है, where lambda is the eigenvalue corresponding to eigenvector x for matrix A. ये सब कुछ matrix A के लिए चल रहा है. Okay, so this I can write it as ax minus lambda x is equal to 0. Okay, now if I take x common, what is in the bracket? A minus lambda है. हाँ माइनस लैम्डा है. हाँ, इसका रीजन मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था. जब आप मैट्रिक्स में रहते हो, मैट्रिक्स में ओके सर करस्पॉन्ड, सर जो ऊपर का स्टेटमेंट है करस्पॉन्डिंग टू ए आएगा ना सर, मतलब द होल स्टेटमेंट इज फॉर ए ओनली ना, तो मैं फिर से वो रिपीट नहीं कर रहा. ओके. द होल थियरी इज फॉर मैट्रिक्स ए ना. यस सर. हाँ, सो ए इज एनी रैंडम एनी जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n. दिस होल थियरी इज फॉर मैट्रिक्स ओनली, फॉर मैट्रिक्स ओनली. आप बोल सकते हो, करेक्ट है आपका स्टेटमेंट, द लैम्डा एंड एक्स इज फॉर मैट्रिक्स ए ओनली, बट मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सब कुछ ए के लिए चल रहा है. हाँ, यस. सो व्हेन वी आर इन मैट्रिक्स, अगर आपको कोई एलिमेंट कॉमन लेना है, लाइक से ए बी, क्या था मैंने कल कुछ कैसे दिया था मुझे भी याद नहीं, ए माइनस से, सर A plus B, A plus C ठीक है. लिया हाँ हाँ, ठीक है. हाँ, तो यहाँ से A common अगर है. मुझे ए कॉमन लेना है, सो व्हाट इज इन द ब्रैकेट? सर I plus A inverse into B. हाँ, आई प्लस ए इनवर्स इंटू बी. आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देखो, फिर से आपको यही मिलेगा. सो इट सिंपली मीन्स व्हेन वी आर इन मैट्रिक्स, अगर आप कोई नंबर कॉमन लेते हो तो उस नंबर के जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको रखना है. इतना ही रिजल्ट है. व्हेन वी आर इन मैट्रिक्स एंड इफ यू टेक एनी मैट्रिक्स कॉमन, so instead of that you have to write identity matrix. Okay, now yeah, and now this I can treat as sorry, this I can treat as some B matrix into X is equal to 0, where matrix B is A minus lambda I. ठीक है. हाँ, अब इसके आगे now what is this? ये क्या है? ये क्या है बेसिकली? bx इक्वल टू 0. क्या है ये? इट्स होमोजेनियस सिस्टम. बस प्रीवियसली मैं ए नोटेशन यूज कर रहा था, यहाँ पे बी नोटेशन यूज किया. ओके, विच इज होमोजेनियस सिस्टम. ओके, सो होमोजेनियस सिस्टम है तो डायरेक्टली आपको पता है ये कंसिस्टेंट होती है. अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, ये कंसिस्टेंट होती है क्योंकि उसमें सॉल्यूशन रहता ही है. ओके, under consistency there are two types. That system may have unique solution, that system may have infinite solution. Correct? Unique solution हमेशा क्या होता है? ट्रिवियल, सारे वैल्यू 0. और इन्फिनिट क्या होता है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. बट जब आप ये आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ये टॉपिक आप डिफाइन कर रहे थे, इस उसमें व्हाट इज द कंडीशन ऑन एक्स? एक्स मस्ट बी नॉन जीरो. करेक्ट ना? दैट वेक्टर मस्ट बी नॉन जीरो. अगर x इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब क्या होता है? वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है. करेक्ट है ना? बट सिंस सिस्टम इज होमोजीनियस एंड दिस x इज नॉट इक्वल टू 0, है ना? क्योंकि आपको गिवन नहीं है, x आपको कंपल्सरी नॉन जीरो चाहिए. ओके, इसका मतलब क्या है? इस सिस्टम को यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं हो रहा है. करेक्ट है ना? व्हाट दिस इंप्लाइज? दिस सिस्टम हैज कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन. Therefore, given system has infinite solution. ये कहीं पे भी आपको क्वेश्चन इस पे नहीं आने वाला. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, अभी आप ऊपर लेके जाता हूं और मुझे यहाँ पे रिजल्ट आपको मैं देता हूं. इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या कंडीशन आती है? अगर x इक्वल टू 0 आपके सिस्टम में है ना, और अगर आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है तो डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट क्या होता है? 0. कि नॉन जीरो आता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो 0 आता है तो ही वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा. सो व्हाट दिस इंप्लाइज? डिटरमिनेंट ऑफ b मस्ट बी 0. दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ a minus lambda I must be 0 for any given eigen value and eigen vector x.
x और फॉर दिस सिस्टम. यहां तक समझ में आ रहा है प्रूफ? Yes, sir. Yes, sir. And this equation is called as आप बस इतना लिखो अगर आप नोटबुक में लिख रहे हो, कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. Characteristics equation. Okay, and roots of characteristic equation are called eigenvalues. Done. एक पार्ट हो गया. अभी मुझे बस आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है, ठीक है. एंड रूट्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर कॉल्ड एज आइगन वैल्यू. ठीक है, हाँ, डन. सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन. अभी इसको मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूँ. ये रिजल्ट यूज करके हमें आइगन वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करने. इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करने वाला हूँ. बट बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रोसेस. तो ये जो भी कर रहे हैं ना, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक a इज इक्वल टू 1 मैं सिंपल मैट्रिक्स ले रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन मुझे सिंपल चाहिए. जल्दी हो जाएगा. लेट मी टेक a इक्वल टू दिस. ओके, या क्वेश्चन ही बनाता हूँ ना मैं. फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स a इक्वल टू दिस. डन. ठीक है, क्योंकि आपको एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में. अभी इसका आंसर मुझे देख के समझ में आ रहा है क्योंकि एक रिजल्ट है जो आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, सो इन सॉल्यूशन. ठीक है, सो अभी आपको मैंने क्या एक्सप्लेन किया. कैन एनीवन समराइज दिस? व्हाट इज माय कंक्लूजन? व्हाट इज माय फाइनल कंक्लूजन? आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? बोलो, व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? मुझे रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर दी आइगन वैल्यूज. बट व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा i इज इक्वल टू 0. ओके, सो कंसीडर, या आप खुद कंसीडर करोगे ना. कंसीडर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा i, determinant of a minus lambda I is equal to 0. That is, therefore, determinant of, let me put all these matrix. A matrix क्या है? बोलो. 1 1 0 2. ठीक है, या उससे पहले मैं ये कैलकुलेट करता हूं ना, क्योंकि वो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना है. But before that, let me calculate what is this a minus lambda, where a minus lambda I is equal to, a matrix क्या है? 1 1 0 2. डन. माइनस लैम्बडा. I matrix क्या होगा इस केस में? लैम्बडा इज द नंबर. हाँ, I matrix क्या होगा? 2 by 2 का होगा ना, पर इसके ऑर्डर 2 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर भी 2 by 2 आएगी. सो 1 0 0 1. ओके, कैन यू टेल मी दिस कैलकुलेशन? हाँ, ये लैम्बडा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना अंदर. Yes, sir. लिख लेता हूँ इनिशियली. सो 1 1 0 2 माइनस लैम्बडा हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई आपको करना होगा. सो लैम्बडा 0 0. नाउ लैम्बडा, नाउ जस्ट टेल मी दिस सबट्रैक्शन. बोलो. 1 माइनस लैम्बडा, देन 1 0 2 माइनस लैम्बडा. तो दिस इज योर a माइनस लैम्बडा i, और मुझे इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 कंसिडर करना है. देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा i इज इक्वल टू 0 implies डिटरमिनेंट ऑफ 1 माइनस लैम्बडा 1 0 2 माइनस लैम्बडा
इज इक्वल टू 0. करेक्ट है ना? Yes, sir. सो व्हाट इज दिस डिटर्मिनेंट? क्रॉस प्रोडक्ट ना, ये सिंपल है ना. सो 1 माइनस लैम्बडा एंड 2 माइनस लैम्बडा माइनस 0 इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम दिस व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ लैम्बडा? 1 and 2. 1 and 2. डन. दिस आर द आइगन वैल्यूज ऑफ गिवन मैट्रिक्स. कुछ डिफिकल्ट लग रहा है क्या इसमें? No, sir. सर जी ओके अभी आप ये देखो, ये इतनी लेंदी प्रोसेस है. ओके मैं इसको एक डायरेक्टली फॉर्मूले में ही फिट करने वाला हूं. ठीक है, सो लेट मी इंट्रोड्यूस दैट नाउ. ठीक है, तो ये आपकी एक्चुअल प्रोसेस है. ओके मेरे पास एक रिजल्ट है. सो लेट मी राइट, इसके नीचे एक स्टेटमेंट ले, देयरफॉर आइगन वैल्यूज ऑफ matrix A are lambda is equal to 1 and 2. There are two eigenvalues, 1 and 2. Okay, yeah. And now let me add one remark here. एक मैं डायरेक्टली फॉर्मूला देने वाला हूं. फॉर्मूला कैसे है आप देखो. ठीक है, सो फॉर 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स, let me take on next page. So for 2x2 matrix, it's a matrix like this. ठीक है, जनरल करने की भी जरूरत नहीं है. इसका जो सिंप्लीफिकेशन होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्बडा i इज इक्वल टू 0. ओके, दिस इज सिमिलर टू दिस लैम्बडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0. अभी आपको मुझे पता है, आई थिंक आपको ये दिस पार्ट में बी न्यू फॉर यू. व्हाट इज अ ट्रेस पता होना चाहिए. हाँ, तो जिनको नहीं पता, या आई थिंक ये CD एग्जाम में कहीं पे तो ये वर्ड रहेगा. सो ट्रेस, हाँ ट्रेस ऑफ a. ओके हाँ, ट्रेस ऑफ a इसको एक्चुअली, बट ठीक है अभी मैंने ऐसे नहीं लिखते बेसिकली. आई थिंक ट्रेस ऑफ a से भी लिखते हैं. ठीक है, बट अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, जाने दो. ठीक है, सो ट्रेस ऑफ a into lambda. अरे हाँ सॉरी, लैम्बडा. अच्छे से लिखता हूँ क्योंकि ये मेन फॉर्मूला है. लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0. इट्स अ 2x2, it's a degree 2 polynomial. So what is trace of a? Trace of a is actually sum of the diagonal elements. एक्चुअली मैं डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकता था a11 प्लस a22 प्लस a33, बट ये भी एक वर्ड आपको पता होना चाहिए. इसके लिए मैंने ये उसमें ये ऐड किया. सो रिमेंबर नाउ ऑनवर्ड्स, ट्रेस ऑफ इज नथिंग बट सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, एंड यू कैन चेक अगर ये फॉर्मूला मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, लैम्बडा स्क्वायर माइनस दिस प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0. इफ आई डायरेक्टली अप्लाई हियर, ठीक है, मैं यहाँ पे कॉर्नर में कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ. तो क्या था फॉर्मूला? डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ a लैम्बडा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0. दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. मतलब ये जो पार्ट है ना, इसको मैंने इसमें सिंप्लीफाई किया. नाउ इफ आई पुट द वैल्यूज, सो लैम्बडा स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट. 2 + 1 इज 3 एंड प्लस व्हाट इज द डिटरमिनेंट? 2 इज इक्वल टू 0. अब इसके रूट्स कैलकुलेट करो कैलसी में या आप मैन्युअली. व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस? हाँ, अब ये कैलसी में करो, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना. कैलसी में पता है ना सबको ये. अभी 3/3 का ट्रिवियल, वहां पे ट्रिवियल ही लिया एग्जांपल, बट इतने ट्रिवियल नहीं रहेगा आपको. सो दोज हु डोंट नो, लेट मी शो यू क्विकली, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में आपको. हाँ, अभी मेरे पास ये ES का ही है, EX का है, सॉरी. हाँ, सो अंडर दिस मोड कहाँ पे है, कौन से नंबर पे है? हाँ, यहाँ पे. ठीक है, सो इफ आई प्रेस इक्वल, इक्वेशन में जाना है बेसिकली. ठीक है, हाँ, यहाँ पे फर्स्ट में साइमल्टेनियस है, सेकंड में पॉलिनोमियल है. ये पॉलिनोमियल है तो आपको सेकंड प्रेस करना है. इसमें ऑप्शन है डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4. ये डिग्री 2 की है, प्रेस 2. यहाँ पे बस कोएफिशिएंट डाल लें. पहला कोएफिशिएंट है 1 इक्वल, नेक्स्ट कोएफिशिएंट इज -3,
नेक्स्ट कोएफिशिएंट इज 2, डन। तो पहला रूट क्या है 2 एंड सेकंड रूट क्या है 1, हो गया। तो जिनको नहीं आता है ऐसे, आप ऐसे ही करो, ये कैल्शियम में करना है, हाँ, तो इसलिए आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो। आंसर क्या आ रहा है 1 एंड 2, और हमने क्या कैलकुलेट किया है 1 एंड 2। सो देखो ये पूरा कैलकुलेशन मैंने बस क्या किया है, 2 स्टेप में रखा है, 1 2 3, एक्चुअली 2 स्टेप में ही है। क्लियर ना, फॉर्मूला समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ बोलो बोलो। Yes, sir. Okay. Sir, how to find eigenvector? अभी जा रहे हैं ना उस पे, दैट इज आवर सेकंड क्लेम। तो लेट मी जस्ट फिनिश दिस फर्स्ट, ओके। तो ये हो गया पहला पार्ट। नाउ सिमिलरली आई कैन राइट अ फॉर्मूला फॉर 3x3 मैट्रिक्स, क्योंकि आपको ज्यादातर क्वेश्चन 3x3 के आने वाले हैं, ठीक है। सो लेट मी राइट द सेम रिजल्ट फॉर 3x3 मैट्रिक्स। सो determinant of a minus lambda I is equal to 0. This can be simplified as lambda cube minus trace of a into lambda square plus m11. This is minor of first element, first diagonal element, plus minor of second diagonal element, करेक्ट ही है ना, प्लस माइनर ऑफ थर्ड डायगोनल एलिमेंट टाइम्स लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनर ऑफ फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट, माइनर ऑफ सेकंड डायगोनल एलिमेंट इनटू माइनर ऑफ थर्ड डायगोनल एलिमेंट, करेक्ट ही है, बट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अभी बहुत टाइम हो गया ये पढ़ाते समय। या करेक्ट, ठीक है, डन। अभी आपको, हाँ, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज M11? पता है क्या आपको ये M11 क्या है? Yes, sir. Minor of first element. हाँ, सो 1 2 3 4 5 6, क्यों इतना डिफिकल्ट करना है, 1 0 1, दिखाता हूँ मैं आपको, 2 1 1 0 1 3, ठीक है। लेट मी टेक दिस, हाँ। सो M11 मीन्स माइनर ऑफ योर फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट, ओके। तो ये आपका पहला डायगोनल एलिमेंट है, इसका माइनर क्या होता है, जस्ट डिलीट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसका डिटर्मिनेंट। सो 3 - 1 इज 2, गुड। नेक्स्ट इज M22, मतलब 1 का डायगोनल एलिमेंट, क्या आएगा ये, जस्ट डिलीट सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3, एंड नेक्स्ट इज M33, आपको पता ही है, 1. ये आपने शायद एडजॉइंट में यूज किया ना ये रिजल्ट, थर्ड रो थर्ड कॉलम इज 1, डन, ओके। इसमें ही आप मिस्टेक करने वाले हो एग्जाम में, याद रखो, इन वैल्यूज में, डन। बाकी सारी चीज आपको पता ही है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द आइगन वैल्यूज। अभी जो आपका क्वेश्चन था सर, ये हो गया आइगन वैल्यूज के लिए। अभी इसके आगे आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट कैसे करने, सो लेट मी टॉक अबाउट नाउ सेकंड क्लेम, हाउ टू फाइंड। अभी इसके आगे जो मेरी प्रोसेस है ना, वो शायद बुक से मैच नहीं करेगी, ओके। तो बट यही मैं जो आपको मेथड दूंगा, दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर एनी गिवन मैट्रिक्स। आपको सोचना नहीं कि गिवन मैट्रिक्स कौन सा है, ओके। सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, नो नीड टू चेक दैट पार्ट, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल गिवन एग्जांपल्स, ठीक है। सो हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स ऑफ आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर, हाँ, आइगन वेक्टर जो होता है वो लैम्बडा के करस्पॉन्डिंग ही होता है, ओके। मैट्रिक्स का तो वो रहता ही है, मैट्रिक्स का तो वो रहता ही है, बट वो हर एक लैम्बडा के करस्पॉन्डिंग होता है। तो मैं ऐसे लिखता हूं, हाउ टू फाइंड आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू, ठीक है। सो कितना टाइम है और मुझे टाइम बोलो, 9 10 5 minutes remaining. ओके, 5 minutes, sir. ठीक है। सो आई कैन फिनिश दिस। सो टू फाइंड दिस, लेट मी टेक वन स्टेटमेंट। पहले मुझे एक आइगन वेक्टर तो लेने दो। सो लेट कैपिटल X बी द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा, ठीक है। सो व्हाट दिस इंप्लाइज, AX माइनस लैम्बडा I इज इक्वल टू 0, करेक्ट ना? Yes, sir. सॉरी, AX इक्वल टू लैम्बडा X ना,
ठीक है, वैसे लिखता हूँ x इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स. ओके, सो दिस आई कैन राइट इट एज a माइनस लैम्बडा आई टाइम्स x इज इक्वल टू 0. यहां पे बस इतना डिफरेंस होगा. अब ये जो लैम्बडा होगा या जो जिस लैम्बडा के करस्पॉन्डिंग आप कैलकुलेट कर रहे हो, ओके, वो लैम्बडा आपको यहां पे पुट करना है. ये अननोन नहीं रहेगा. दिस इज नॉट अननोन, करेक्ट ना. फॉर एग्जांपल ऊपर के क्वेश्चन में 1 आ रहा है ना, तो ये 1 आप वहां पे पुट करोगे. आप अगर 1 के करस्पॉन्डिंग अगर आपको आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है तो यहां पे क्या पुट करना होगा? 1. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे नंबर आने वाला है. दिस इज नॉट अननोन नाउ, सो पुट द वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू जिसके करस्पॉन्डिंग आपको कैलकुलेट करना है वो वैल्यू यहां पे पुट करो. ओके, इफ यू पुट हियर सर्टन वैल्यू, देन अभी इसमें क्या अननोन रहेगा? इस पूरे सिस्टम में अननोन क्या आने वाला है? ओनली एक्स ना. Yes, sir. लैम्बडा चला गया ना, अभी लैम्बडा की जगह पे नंबर आएगा. सो इन दिस सिस्टम x इज द अननोन एंड नाउ दिस बिकम योर होमोजेनियस सिस्टम. यस सर. सो जस्ट सॉल्व दिस होमोजेनियस सिस्टम एंड x कैलकुलेट करो. और आपको पता है सिस्टम को सॉल्यूशन क्या आने वाला है. क्या आने वाला है सिस्टम को सॉल्यूशन? कभी यूनिट मिलेगा क्या इस केस में? इनफाइनाइटी होगा. सॉल्यूशन पहले ही पता है, कंसिस्टेंट तो होगी, सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट होगा, रैंक भी उसके ऑर्डर के लेस ही आने वाली. इसका मतलब लास्ट रो हमेशा 0 होगा. करेक्ट बोल रहा हूं ना मैं सब कुछ? यस सर. रैंक इज ऑलवेज लेस देन ऑर्डर. इफ रैंक इज ऑलवेज लेस देन ऑर्डर मतलब लास्ट रो आपकी हमेशा 0 आएगी. चांस ही नहीं कि लास्ट रो में नॉन जीरो नंबर रहे. ठीक है, सो इसके आगे बस मुझे ये ऐड करना है, सॉल्व दिस होमोजेनियस सिस्टम विद द रेगुलर अप्रोच जो आपने ऑफलाइन में लर्न किया था, या सिस्टम के बारे में जो भी टॉपिक हमने कवर किया उसमें से आप ये कर सकते हो प्रिपेयर. सो सॉल्व द होमोजेनियस सिस्टम एंड फाइंड, मैं पर्टिकुलरली ऐड कर रहा हूं, एंड फाइंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ x. डन. ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाता हूं. यहीं पे थ्योरी हमारी हो गई. अभी मैं डायरेक्टली नेक्स्ट लेक्चर में एक एग्जांपल लेने वाला हूं जिसके मैं आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करके दूंगा, जिसके मैं आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करके दूंगा, और फिर इसके बाद इस पे बहुत सारे ऐसे रिमार्क है, ऐसे क्विक रिजल्ट है दैट विल फोकस. ओके, क्योंकि पहले तो प्रोसेस समझ में आनी चाहिए. सो या, सो विल स्टॉप हियर टुडे. थैंक यू सर. नोट्स की पीडीएफ. यस मैं ये अपलोड Thank you, कर sir. देता हूँ और आज की रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर देता हूँ और कल की भी एक ही टाइप पे करता हूँ. सर